Hi dear students, today we are going to discuss about the integration part 3. That is nothing but the methods of integration, that is the third or fourth one, integration by partial fractions. In part 1, part 2 we are discussed about the basic of integrations and the some more important particular integration and substitution method we have discussed. So in this class we can discuss about that partial fraction method. How to that fraction now we need to make that it is a partial. That is very easiest. Whenever the integration is of the type the integration of x plus pi divided by x square plus x minus 2. So now directly whenever seeing it you can't differentiate or integrate it. So whether you need to use u into v, x plus pi into 1 divided by x square plus x minus 2, or you need to solve it further, you need to take it. But whenever you are considering like this, so you will get 2 divided by x minus 1, 1 divided by x plus 2. ऐसा हुआ तो इजी से आते हैं आपको आसान से. You need to remember all the formulas of integration, whatever the all integration are there in the first class. Part 1 is there, that is the basic integration. Whenever you are watching that video, then you will get every idea. So here it is 2 divided by x minus 1 minus 1 divided by x plus 1. ऐसा है तो आप इजी से कर सकते. So one by one we can see the example and procedure also we need to know. So what is the procedure? If the equation is of the form px plus q divided by x minus a into x minus b, here it is x minus a into x minus b is there, then you can partially fraction it out of partial fraction a divided by x minus a plus b divided by x minus. This equal to you can write this much. And if the equation is of the form, then you can write it as a like this, a divided by x minus a plus b divided by x minus a whole square. If the equation of the form ऊपर क्या भी हो px square whatever that is, डिनोमिनेटर में x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए क्या फर्क नहीं, तीन फैक्टर से तीन प्रोडक्ट रहेगा. तो पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर एक्स माइनस बी. As well as if the equation is of the form you can't factorize it, so whenever ax square plus bx plus c है ना cannot be factor further, तो you can use a divided by x minus a plus bx plus c. So because 2 है ना इधर x square है तो x plus c लिया तो आंसर आता है. One by one you can solve the problems, you will get everything, so don't worry. So this example asked in the 15, 16, 17, 18. Very easy example, integration of x divided by x plus 1 into x plus 2. So the equation is of the form x divided by x plus 1 into x plus 2 with respect to x. You can write it as a divided by means x divided by x plus 1 into x plus 2 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a divided by x plus 1 plus b divided by x plus 2 ऐसा लिख सकते हैं आप, क्योंकि इधर है ना a divided by x minus a x minus b, either it is plus or minus, so separately you can write it. So here the same method, a divided by b divided by x plus 2. So after that take LCM of this example, x divided by x plus 1 x plus 2 is equal to LCM लिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा बस, that's it you need to do, a into x plus 2 b into x plus 1 cross multiplication whole divided by this into this x plus 1 into x plus 2. Here the LCM is x plus 1 into x plus 2, तो x plus 1 तो है इधर, तो इसको क्या चाहिए x प्लस 2, तो मल्टीप्लाई करो x प्लस 2 नीचे भी ऊपर भी, और इधर x प्लस 1 चाहिए तो यू नीड x प्लस 1 हियर एज वेल एज हियर आल्सो b इंटू एक्स प्लस 1. अभी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कैंसिल होता है, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होता है. अभी क्या बचेगा देखो, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. ये हमारा प्रोसीजर. तो हियर यू नीड टू vanish the a one time and vanish the b one time. So whenever you want to vanish the a, then you need to substitute the x value as a minus 2 because this term has to be goes to 0. When it is goes to 0, then you will get the b value. When this term goes to 0, then you will get the this value. That is nothing but put x is equal to minus 2. X का value minus 2, a into minus 2 plus 2
plus b into minus 2 plus 1 hold minus 2. This term will be 0. 0 into a is 0 plus b minus 2 plus 1 will be minus 1. Minus 1 into plus this will be b into minus 1. So b into minus 1 will be minus b. So minus b is equal to minus 2. Then it will be minus 2 is equal to minus b. It implies what? It implies b is equal to 2. You will get the value of b. So ऐसे हम क्या फाइंड करना है? a का वैल्यू. So foot x equal to 2 है ना? Foot x is equal to here minus 1. तो इक्वेशन क्या होगा? x is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1. अभी आप x is equal to minus 1 सब्स्टिट्यूट किया तो minus 1 a into minus 1 plus 2 plus b into minus 1 plus 1. तो minus 1 a into minus 1 plus 2 will be 1. So a into 1 plus this will be 0. A is equal to minus 1. That's it. So here this value you can write as a minus 1 divided by x plus 1 plus b divided by b का वैल्यू क्या है? 2. 2 divided by x plus 2. This value is nothing but integration of this. That you can write as a this. You can write as a divided by x plus 1 with respect to x and b divided by x plus 2 with respect to x. This you can write. Now you got the values of b as well as a. So what is the value of a? That is nothing but minus 1 divided by x plus 1 plus what is the b value? 2 divided by x plus 2 with respect to x. With respect to x. Now you can simplify by using the formulas. That is nothing but so that minus 1 divided by x plus 1 with respect to x plus 2 will be outside. 1 divided by x plus 2 with respect to x. So minus as it is. You know already the integration of 1 divided by dabba with respect to x is nothing but log dabba plus c. Clear? So here it is the first linear equation. When it is linear, x का बाजू क्या रहता है? 1 रहता है तब. और you can directly take 1 by x is equal to x. So it is x plus 1 है, linear equation है. x plus 2 है, वो भी linear है. तो नहीं है तो डिवाइडेड बाय माइनस आता है, बस उतना ही. तो माइनस log of x plus 1 plus a 2 times log of x plus 2 and plus c. This is your answer. You can write it as a 2 times log of x plus 2 minus log of x plus 1 plus c. Or you can take it as a 2 will becomes here log of x plus 2 square minus log of x plus 1 plus c. Now log m minus log m property. Log m minus log n property is nothing but log of m divided by n. And log m into n का क्या होगा? log m plus log n होगा. बस इधर क्या होगा? log of x plus 2 whole square divided by x plus 1 plus c. This is your answer. So easy है, कर सकते हैं आप. पहला और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देखो. So whatever the value is there that you need to write like this. So after that directly you can write this step. No worries. You can cancel this step. Clear? So a into x plus 2 plus b into x plus 1 and put x equal to minus 2 as well as you will get this problem. So check the second one. This is also simple. Directly you can write this as a x divided by x minus 1 into x minus 2 with respect to x as a divided by x minus 1 with respect to x and b divided by x minus 2 with respect to x. Same also here. So whatever the LHS is there, LHS x divided by x minus 1 x minus 2 is equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 2. You can skip the second step, that is this multiplication हुआ तो क्या होगा? a into x minus 2 plus b into x minus 1. Denominator will be this and this get cancelled, so equal to x. Whatever the value is there in the numerator, that will be here. So x equal to this much. Now one time x equal to 2 and x equal to 1. तो वैसा वर्ष आपको a का and b का वैल्यू मिल जाएगा. तो x is equal to 2 ले लो, 2 is equal to a into
2 minus 2 plus b into 2 minus 1. A term becomes 0, 2 minus 1 will be 1, that will be b is equal to 2. तो आपको b का वैल्यू मिला. तो ऐसे ही x is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करो. 1 is equal to a into 1 minus 2 प्लस b into 1 minus 1. ये वाला टर्म 0 होता है, तो अभी 1 minus 2 will be minus 1 and this will be minus a is equal to 1 and a is equal to minus 1. आपका दोनों वैल्यू मिले ना, a is equal to minus 1 as well as b is equal to 2. That value you need to substitute here. So here it is, a value will be minus 1 divided by x minus 1 with respect to x plus what is the b value, that is 2. 2 divided by x minus 2 with respect to x. So here minus outside, this will be, you know already, log of x minus 1 plus 2 outside, log of x minus 2 plus c. So this will be comes again log of this x minus 2 whole square minus log of x minus 1. You can ask me, oh sir 2 log of x minus 2 है तो log of x minus 2 square कैसे लिखे आप? This is the property of log m to the power n is n into log m. So whatever the m to the power है ना, that will be come to the nearest the value. So अभी log m minus log n formula x minus 2 whole square divided by x minus 1 plus c. This is your final answer. So सब easy रहता है, step remember करना बस one by one. So इधर भी सेम है, तो 3x divided by 3x minus 1 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3 integration is equal to, we can write it as a divided by x minus 1 with respect to x and b divided by x minus 2 with respect to x and c divided by x minus 3 with respect to x. Now you need to find the a, b, c value, that's it. So 3x minus 1 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3 is equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 2 plus c divided by x minus 3. So LCM will be x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. It means that will be cancelled, x minus 1 x minus 2 x minus 3. This will be equal to 3x minus 1 divided by x minus 1 and x minus 2 x minus 3. This will be LCM. x minus 1 तो है, तो x minus 2 x minus 3 चाहिए इसको, तो ये इंटू x minus 2 x minus 3 प्लस b इंटू x minus 2 तो है, तो x minus 1 and x minus 3 plus c into these two, c into x minus 1 x minus 2. This is our answer. So this will be cancelled. So whatever the remaining value is there, that is 3x minus 1 is equal to a into x minus 2 x minus 3 and plus b into x minus 1 and x minus 3 plus c into x minus 2, sorry, x minus 1 and x minus 2. You need to find the a, b, c value. This term will be 0 when x equal to 2. This term will be 0 when x equal to 1. And this term will be 0 when x equal to 1 or 2. Anyone you can take. So ऐसे ही आप वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो x इक्वल टू आई विल टेक 1 फर्स्ट. 1 लिया तो कौन सा टर्म 0 होता है देखो, 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वाला तो 0 होते हैं ना, डायरेक्टली 0 लिखो ना, ये वाला 0 नहीं होते, ये वाला, ये 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये टर्म 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू सी 0, 0 इंटू बी 0. अभी इधर क्या होगा 1, तो 1 सब्स्टिट्यूट किया तो इधर 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 माइनस प्लस, तो दिस वैल्यू विल बी 2a. तो 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होगा 2 इज इक्वल टू 2a. दिस implies 2 to cancel, a is equal to 1. So you will get the a value. So while getting the a value, so find the b and c value. So put x is equal to 2. 2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा 3 into 2
माइनस वन इज इक्वल टू, अभी देखो टू सब्स्टिट्यूट किया तो कौन सा टर्म जीरो होता है, तो ए वाला जीरो होता है, ये वाला जीरो होता है, तो क्या बचेगा ये वाला, तो b इंटू टू माइनस वन, b इंटू टू माइनस वन एज वेल एट टू माइनस थ्री। अभी देखो 3 इंटू टू 6 माइनस वन विल बी 5, 2 माइनस वन विल बी 1, तो b इंटू वन इंटू टू माइनस थ्री विल बी माइनस वन, माइनस माइनस बिकम दिस साइड माइनस फाइव, द b वैल्यू विल बी माइनस फाइव। तो ऐसे ही फाइंड करो फुट x इज इक्वल टू थ्री सब्स्टिट्यूट करो आप, तो ये वाला टर्म जीरो होता है, थ्री माइनस थ्री कितना जीरो, थ्री माइनस थ्री कितना जीरो, अभी इधर थ्री सब्स्टिट्यूट करो, थ्री इंटू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ये वाला टर्म में आएगा c इंटू थ्री माइनस वन एंड थ्री माइनस टू, थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस वन विल बी, नाइन माइनस वन विल बी एट इज इक्वल टू थ्री माइनस वन विल बी टू एंड थ्री माइनस टू विल बी वन, ये टू इधर है तो एट बाई टू इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू फोर, तो आपके पास टू वन जा टू फोर जा, सी का वैल्यू फोर, बी का वैल्यू माइनस फाइव, ए का वैल्यू वन, वन माइनस फाइव फोर, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट हियर। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करते देखो इधर आप वन बाय वन ना, तो आपका इक्वेशन क्या था, a डिवाइडेड बाय x माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू x, b डिवाइडेड बाय x माइनस टू विथ रिस्पेक्ट टू x एंड c डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री विथ रिस्पेक्ट टू x। a का वैल्यू वन है, वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन प्लस b डिवाइडेड बाय माइनस फाइव डिवाइडेड बाय x माइनस टू विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c डिवाइडेड बाय c वैल्यू विल बी फोर x माइनस थ्री विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग अप्लाई करो डायरेक्टली आता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लॉग ऑफ x माइनस वन माइनस फाइव टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस टू प्लस फोर टाइम्स log of x minus थ्री। Further you can simplify or keep it as it is, so it is clear. So this is your final answer. Further you can solve this one, log x minus 3 to the power 4, log x minus 2 to the power minus pi, and this will be division. Everything is clear. So I hope this is clear. So the next one, this is also same to same. So इधर 3x minus 1 था, इधर क्या है x, तो directly you can write this step. So this will be, everything will be same, you will get this only, here it is x, in the place of here it is 3x minus 1 and here it is x is equal to a into x minus 2 into x minus 3 and b into x minus 1 into x minus 3 plus c into x minus 1 into x minus 2. So this will be same, both are same. Here it is this and this term are both are same, only numerator is changes, 3x minus 1 है, बस 3x minus 1 को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप इधर x इक्वल टू एक बार 1 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ये वाला टर्म जीरो होता है तो ये बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 1, ये वैल्यू क्या होगा 1 माइनस टू माइनस वन, 1 माइनस थ्री माइनस टू, तो ये आएगा ना 2 ये, तो 2 ये a का वैल्यू 1 बाई टू, बस x इज इक्वल टू टू सब्स्टिट्यूट किया तो इधर तो 2 होता है, तो इधर देखो क्या आया था b का वैल्यू, इधर 1 इंटू माइनस वन, बिकॉज 2 सब्स्टिट्यूट किया तो इतना ही आएगा ना, माइनस b आएगा ये साइड, तो माइनस b सब्स्टिट्यूट करो तो डायरेक्टली b इज इक्वल टू माइनस टू। ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 इज इक्वल टू 3 माइनस वन 3 माइनस टू, c into 2 into 1. So c value will be 3 by 2, 3 divided by 2. This is your a, b, c value. So substitute here directly, a divided by 1 by 2 divided by x minus 1, a step, b, c. तो a substitute करो बस, तो 1 divided by 2 x minus 1 plus with respect to x and b minus 2 divided by x minus 2 with respect to x plus c 3 by 2 divided by x minus 3 with respect to x. सिंपल, तो 1 by 2 तो कॉमन है, बाहर ले लो, इसका आंसर log ऑफ डायरेक्टली फार्मूला x minus 1, तो माइनस टू बाहर, log ऑफ x minus 2 प्लस 3 by 2 बाहर, log ऑफ x minus 3 प्लस c, बस इतना ही आपका आंसर।
तो 2-3 स्टेप में स्किप किया क्योंकि इधर है ना वो स्टेप सेम टू सेम, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज है. तो x minus 1, x minus 2, x minus 3. So the next example is 2x divided by x square plus 3x plus 2 with respect to x. Here there is no factors in the denominator. Make them. So factors करने के लिए आपको एक तरीका है ना. तो what is that? x square plus 3x plus 2. मिडल नंबर का क्या होगा? प्रोडक्ट एंड एडिशन. सो 2 into 1 will be 2. एडिशन किया तो 3 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 आना चाहिए. वो दो नंबर कौन सा है? इजी. तो 2x plus x, 2 into 1 will be 2, 2x plus x will be 3x. This is your answer. So whenever you are getting the coefficient of x square is 1, coefficient of x square is 1, then directly you can write the x square plus 2x plus x plus 2. So here it is x plus 2 plus x into 1 into x plus 2. What are the numbers? Are x plus 1 as well as x plus 2. ये टर्म लिखने के लिए इतना लिखना जरूरी नहीं है. तो क्या क्या लिख सकते हैं आप? डायरेक्टली आप इधर क्या लिख सकते हैं? तो एक मिनट, हाँ इधर देखो, आपका फैक्टर्स मिले हैं ना, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3. सो दैट यू नीड टू डू. सो हाउ इट इज? 1 मिनट. x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज देयर. तो आपको पता है ना 2 एंड 1 आर द फैक्टर्स. तो डायरेक्टली x प्लस 2 x प्लस 1 लिखो. बस इसका फैक्टर्स क्या आया? 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको आप क्या लिख सकते हैं? a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ फाइंड द a एंड b वैल्यू. तो इजी है. तो 2x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो कैंसिल होता है, इसका एलसीएम क्या होता है? देखो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2. नाउ x प्लस 1 x प्लस 2. तो x इज इक्वल टू -1, 2 इंटू -1, दिस वैल्यू विल बी 0, -1 प्लस 1 b इंटू -1 प्लस 2. ये वाला तो 0 होता है, ये वाला 2 minus 1 विल बी 1, 1 into b will be b, 2 into -1 will be -2, b value will be -2. Like that x is equal to -2 substitute करो. This will be 2 into -2 will be -4. Then this value will be 0. Then a into -2 plus 1 will be -1. तो a is equal to 4. So b value is -2, a value is 4. That you need to substitute here. So a value will be 4 divided by x plus 2 with respect to x, and b value will be -2 divided by x plus 1 with respect to x. And you know the formula, 4 times log of x plus 2 plus -2 times log of x plus 1 plus c. So here it is 4 times log of, further you can solve or keep it as a symbol, plus and minus log of x plus 1 plus c. This is your answer. So easy method है, तो फॉलो करो, इजी से आता है. तो नेक्स्ट ये वाला देखो, 2x divided by x square plus 1 x square plus 2. Here there is no factors. factors तो है, तो क्वाड्रेटिक का है, तो ऊपर भी 2x है, x square है. तो जस्ट रिमेंबर द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया तो 2x dx का वैल्यू क्या आता है? dt आता है. कैसे देखो, ये x स्क्वेयर का वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करो, ये वाला क्या होगा? ये वाला मिक्स करके dt होगा, तो वही इधर सब्स्टिट्यूट करो बाबा. तो 2x dx का वैल्यू dt, x स्क्वेयर का वैल्यू t प्लस 1 t प्लस 2. बस अभी क्या करना है? इसको पार्शियल फ्रैक्शन करो. तो 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय t प्लस 1 with respect to x with respect to t प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू t. अभी इसका फैक्टर्स आया ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, डिनोमिनेटर कैंसल. तो 1 इज इक्वल टू a इंटू दिस,
ए इंटू टी प्लस टू प्लस बी इंटू टी प्लस वन। यही स्टेप, एक स्टेप स्किप किया मैं। कौन सा स्टेप है? ये वाला टर्म इधर से है ना, वो डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, इसलिए ये वाला टर्म लिख सकते हैं हम एलसीएम निकाल के। इसका एलसीएम क्या आता है? इसका एलसीएम आता है टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू। तो इसलिए इसको टी प्लस टू चाहिए, इसको टी प्लस वन चाहिए। तो अभी टी इज इक्वल टू माइनस टू सब्सिट्यूट करो, ये तो एज इट इज रहता है, ये वाला टर्म जीरो होता है। तो बी इंटू माइनस टू प्लस वन, बी इंटू माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन इज नथिंग बट माइनस वन। बी इज इक्वल टू ए वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन। ये बी का वैल्यू मिला, बी इज इक्वल टू माइनस वन। अभी ए का वैल्यू फाइंड करो। तो ए इज इक्वल टू फाइंड करने के लिए टी इज इक्वल टू माइनस वन, वन इज इक्वल टू ये वाला टर्म क्या होता है? ए इंटू माइनस वन प्लस टू प्लस जीरो। तो ए इज इक्वल टू, ये वाला वन है, टू माइनस वन विल बी वन, ये वैल्यू विल बी वन। वही वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो आप, ये डिवाइडेड बाय है ना, ये वैल्यू कितना? वन डिवाइडेड बाय टी प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू टी, प्लस ये बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू माइनस वन टी प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू टी। अभी देखो इधर डायरेक्टली आसान से आंसर आएगा, लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस लॉग ऑफ टी प्लस टू प्लस सी। अभी देखो log of t plus 1 is nothing but log of x square plus 1 प्लस log of x square plus 2, क्योंकि वो log of x square का वैल्यू क्या था? माइनस वन है ना इधर, ये माइनस वन करो बस। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। सो यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई log m माइनस log n फॉर्मूला यूज करके। सो अभी ये वाला देखो, इधर है ना लॉजिक है इधर, x square minus 4. What is that x square minus 4? That is nothing but a square minus b square. a square minus b square फॉर्मूला क्या है? a minus b into a plus b, a minus b into a plus b। एक मिनट, a square minus b square, अभी ये टू स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप, x square minus टू स्क्वायर, तो x minus टू x plus टू लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। तो इसका और एक बार करो, 5x divided by x plus 1 x minus 2 x plus 2 with respect to x. You can write it as a divided by x plus 1 with respect to x and b divided by x plus 2 with respect to x plus c divided by x minus 2 x minus 2 with respect to x। clear? You can replace it, don't worry, nothing will changes। तो ये भी c। अभी इसका इक्वल करो ना बस, 5x डिवाइडेड बाय x प्लस वन x माइनस टू x प्लस टू इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस वन प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस टू एंड प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस टू। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही आते हैं ना एलसीएम निकालने के बाद, दैट इज नथिंग बट a इंटू दिस x प्लस, इसको छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बस, x माइनस टू। अभी a छोड़ के दोनों मल्टीप्लाई करना b के साथ, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अभी इधर तो क्या आएगा? 5x बचेगा, होल डिवाइडेड बाय दिस एंड होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी कैंसल। अभी आप a b c का वैल्यू फाइंड करना है बस, प्लस c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अभी इधर देखो आप, a का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों जीरो होना चाहिए, b का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों जीरो होना चाहिए। तो अभी क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू माइनस वन जीरो गया, तो x इज इक्वल टू टू, ये वाला जीरो गया। तो अभी x इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो आपको अनदर वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे? देखो इधर x इज इक्वल टू, आई विल टेक माइनस वन फर्स्ट, तो 5 इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म भी जीरो, तो क्या बचेगा? a इंटू माइनस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू विल बी माइनस वन प्लस टू विल बी a इंटू वन, दिस विल बी माइनस थ्री a इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो a इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5/3, तो अभी a का वैल्यू मिला। तो ऐसे ही b का वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू टू करना पड़ेगा। अभी इधर टू सब्स्टिट्यूट किया तो टू माइनस टू जीरो,
2 माइनस 2 0। अभी इधर देखो 2 प्लस 1 c इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू ए इंटू 0 होता है, ओ भी 0 होता है, c इंटू 2 प्लस 1 विल बी 3, 2 plus 1 will be 3. Next 2 plus 2 will be 4. 3 into 4 will be 12c. 12c is equal to 10. Then 10 divided by 12 is equal to c. It implies c is equal to 2 6 जा 2 5 जा, तो 5 by 6। अभी a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला, वो वैल्यू चाहिए तो क्या करना आप, x इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही करो आप, x इज इक्वल टू -2, तो 5 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये वाला क्या होगा 0, ये वाला 0, -2 इधर भी -2 सब किया तो ये इंटू 0 इज 0, c इंटू 0 इज 0, तो यही बचेगा। तो b इंटू -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 अभी 5 इंटू -2 -10, b इंटू -2 प्लस 1 -1 -2 -4, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो -10 एज इट इज, b इंटू 4 इंटू 1 विल बी 4b, तो b इज इक्वल टू -10 बाई 4, 2 2 जा 2 5 जा, इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -5/2। अभी इधर आप देखो a का वैल्यू कितना है आप 5/3, b का वैल्यू 5/6, वो वैल्यू -5/2, तो माइनस कुछ भी नहीं है ना इधर, ओके, सिर्फ b का वैल्यू -5/2 आएगा। तो -5/2 वो वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करना, a डिवाइडेड बाई x प्लस 1, b डिवाइडेड बाई x प्लस 2, c डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो 5/6 1/3 5/3 5/6 5/2, 5/3 ये वाला 5/3 5/6 5/3 5/6 -5/2, तो अभी इधर सब्स्टिट्यूट करो, a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी इधर सब्स्टिट्यूट करो आपका ये वैल्यूज आ, तो 5/3 इंटू x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही कर सकते हैं और b बार भी ले सकते हैं आप, 5/-5/2 into 1 divided by x plus 2 with respect to x, and last value is 5/6 into 1 divided by x minus 2 with respect to x। अभी आप आसान से कर सकते हैं इधर 5/3 log of x plus 1 प्लस -5/2, ये वाली है ना -5/2 log of x plus 2 plus 5/6 log of x minus 2 plus 6, दिस इज योर आंसर। तो इजी से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, इसमें क्या अभी नहीं है। तो इधर b का वैल्यू -5/2 था, c का वैल्यू 5/6 था। सो 1 by 1 सॉल्व करो, आपको आंसर आसान से मिलेगा। 2x minus 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, तो ये भी इजी है। 2x माइनस 3, ये x स्क्वायर माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं आप, x माइनस 1 x प्लस 1, ये वाला 2x प्लस 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और नेक्स्ट a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, b डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस 1, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अभी 2x प्लस 3 है ना, डोंट वरी अबाउट इट, स्क्वायर है तो टेंशन पड़ेगा, स्क्वायर ही नहीं है ना उधर, लीनियर इक्वेशन है। अभी इसका एलसीएम ले लो, आपको क्या मिलेगा 2x माइनस 3, इसका एलसीएम ये इंटू ये छोड़ के दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू ये दोनों x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 and x minus x plus 1, clear? So now here you need to substitute 1 by 1। so अभी x का वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये दोनों टर्म 0 होता है,
तो करो डायरेक्टली x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस b इंटू ये वाला टर्म क्या होगा 0 प्लस 0। तो अभी देखो इधर 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1, तो 1 प्लस 1 विल बी 2, a इंटू 2, 2 प्लस 3 विल बी 5, 5 इंटू 2 विल बी 10, सो a इज इक्वल टू माइनस 1/10। सो अभी a का वैल्यू आया, तो ऐसे ही b का वैल्यू चाहिए ना, तो b का वैल्यू चाहिए तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। ये वाला टर्म कब 0 होता है, x इज इक्वल टू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये दोनों 0 होता है, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू ये वाला टर्म क्या होगा 0, तो b इंटू माइनस 1 माइनस 1 विल बी माइनस 2, माइनस 1 एंड 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 एंड प्लस 0, इसी इंटू इस वाला टर्म क्या होगा 0। अभी इधर देखो 2 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1 माइनस 1 विल बी माइनस 2 एंड दिस टर्म 2 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 2, 3 माइनस 2 विल बी 1, तो b इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, इट इम्प्लाइज दैट माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2b। तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली b इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2, इट मीन्स 5/2। b का वैल्यू 5/2, इसका वैल्यू तो 1 आएगा, इसका वैल्यू तो 5/-2। अभी c का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो अभी इधर आप 1 भी सब्स्टिट्यूट किया माइनस 1 भी सब्स्टिट्यूट किया, डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट करो, देखेंगे x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो एट x इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू इधर 0 प्लस 1 विल बी 1 एंड 0 प्लस 3 विल बी 3 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1, 0 प्लस 3 विल बी 3 प्लस c इंटू 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 विल बी 1। अभी ये वाला माइनस 3 आएगा, 3 इंटू 1 विल बी 3a प्लस b इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 3b प्लस माइनस 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 c। अभी आपके पास कौन सा वैल्यू है, b का वैल्यू है, a का वैल्यू है, इधर सब्स्टिट्यूट करो ना, माइनस 3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/10 and minus 3 into b. What is the value of b? 5/2. Here it is, b value is 5/2 and minus c. अभी ये माइनस c इधर ले लो प्लस c, ये माइनस 3 उधर भेजो प्लस 3। अभी 1/1 करो, इसका एलसीएम तो 2 10 है, तो इधर 1 है तो भी 10 ही होगा। नेक्स्ट ये माइनस 3, ये वाला क्या होगा 2, ये 2 इंटू 5 करना पड़ेगा, माइनस 3 तो बाहर रहता है, तो 5 into 5 will be 25 and minus 3 and you need to multiply 10, you becomes minus 30, that become plus। तो इधर आपको माइनस 3, ये 25 into 3 will be 75, तो माइनस 78 प्लस 30 एंड डिवाइडेड बाई 10। अभी ये आंसर कितना आएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाई 10, तो माइनस 48 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 2 24 जा 2 5 जा माइनस 24/5, एक इसका वैल्यू c का वैल्यू, बस ये माइनस 24/5 5/2 माइनस 1/10 से आपका आंसर है। तो इधर ऐसे ही कर सकते हैं आप 24/5। सो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, a डिवाइडेड बाई x माइनस 1, b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, c डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, ये वैल्यू माइनस 1/10, b बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये लॉग ऑफ 2x प्लस 3 आएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 आएगा बस, एंड c ऑफ माइनस 24/5। तो आप सब्स्टिट्यूट करो, इजी से कर सकते हैं आप। ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना उतना ही मुश्किल था इसमें, और कुछ भी नहीं है क्या अभी, तो आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर मिलेगा। सो ये वाला देखो 1 डिवाइडेड बाय x into x square plus 1 with respect to x, this is the asked in the 2018। सो इजी है, इधर आप फैक्टर्स नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, तो इसको पहला फैक्टर्स करना पड़ेगा। कैसे,
हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, उसमें जाइए आप। एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू टी, देन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको पता है ये मेथड। अब ये टू एक्स उधर भेजो, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू एक्स, ये आपका आंसर, ये आपका सब्स्टिट्यूशन। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, सब वन बाई एक्स एज इट इज, वन डिवाइडेड बाई टी, एंड डी एक्स का वैल्यू कितना आया था, डी टी डिवाइडेड बाई टू एक्स। ये टू बाहर ले लो, तो वन बाई टू, एंड एक्स इन टू एक्स विल बी x square and t with respect to t. What is the value of x square? What is the value of x square? That is t minus 1. 1 by t into t minus 1 with respect to t. अभी आपको कौन सा मेथड आया देखो इधर, 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t into t minus 1 with respect to t. अभी ये हमारा मेथड ये है ना इधर 1 by 2, तो बाहर भेजो, तो 1 डिवाइडेड बाई t into t minus 1 को क्या लिख सकते हैं आप, a डिवाइडेड बाई टी प्लस b डिवाइडेड बाई टी माइनस वन। तो अभी a डिवाइडेड बाई एंड b डिवाइडेड बाई टी माइनस वन, दिस इज नथिंग बट 1 इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस वन एंड प्लस b इंटू टी। अभी t इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करो, 1 इज इक्वल टू जीरो माइनस वन विल बी माइनस a इज इक्वल टू माइनस वन। अभी t इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट करो, b इज इक्वल टू वन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना आप, तो a इंटू वन इज इक्वल टू वन माइनस वन विल बी जीरो, एंड प्लस b इंटू वन, तो वन इज इक्वल टू b, ये वाला तो जीरो था, a का वैल्यू माइनस वन, b का वैल्यू वन, वो वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करो। आपका 1 by 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय t विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय t माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू t, बस। तो अभी इधर 1 by 2 बाहर, इसका माइनस लॉग ऑफ t, इसका ये 1 by 2 दोनों को कॉमन है ना, लॉग ऑफ t माइनस वन प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू प्लस c, बड़ा वाला c, बस उतना ही। ये माइनस बोले तो इसका नेक्स्ट इधर देखो, ये माइनस 1 by 2 log t प्लस 1 by 2 log of t minus 1 प्लस c। अभी इधर माइनस 1 by 2 एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, 1 by 2 log of what is the t minus 1, x square plus c, that's it, this is your answer. You can write this one first or you can write this one first, और m minus n कर सकते, वो भी कर सकते आप। दिस इज योर सोल्यूशन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये भी आप कर सकते, 3x minus 2 divided by x plus 1 whole square, you can write x plus 1 x plus 1, I will give the expansion 3x minus 2 x plus 1 whole square x plus 3 is equal to a divided by x plus 1 लिख सकते, b divided by x plus 1 whole square लिखना, और c divided by x plus 3 लिखना, बस उतना ही। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3x minus 2 is equal to दिस का कोएफिशिएंट्स, वॉट एवर द कोएफिशिएंट्स आर देयर, x plus 1 प्लस एलसीएम चाहिए ना, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम x plus 1 होल स्क्वेयर x plus 3, इसका भी सेम है ना, x plus 1 होल स्क्वेयर x plus 3, एंड b इंटू क्या आएगा आंसर इधर, b इंटू x plus 3 प्लस c इंटू x plus 1 होल स्क्वेयर, बस उतना ही करना पड़ेगा आपको। नाउ x plus 1 होल स्क्वेयर है, दोनों कैंसिल होगा। अभी दिस इक्वल टू दिस है, एक बार x इक्वल टू माइनस वन सब्स्टिट्यूट करो और एक बार x इक्वल टू माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करो, आपको आसान से दोनों आंसर मिलता है। और लास्ट x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, ये 3 सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस 3, अभी इसको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 चाहिए ना, एंड नेक्स्ट एंड x इक्वल टू 0, आपका रिस्पेक्टिव a b c वैल्यू मिलता है, आसान से आप सब्स्टिट्यूट करके इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, हियर आल्सो सेम, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1
and x minus 1. Here it is ax square plus bx plus c. Whenever you are can't express this quadratic equation further, so you can write it as a ax plus b divided by x square plus 1 plus c divided by x minus 1. अभी इसका करो आप, तो x divided by x square plus 1 and x minus 1 is equal to ax plus b बाबा ax प्लस b इंटू क्या करना पड़ेगा x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. ये दोनों टर्म कैंसिल होता है, तो दिस इक्वल टू दिस x इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. सो अभी इधर एक्स स्क्वेयर का वैल्यू है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, तो वो टर्म तो जीरो ही नहीं होता, एक्स स्क्वायर है. तो अभी क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, ये वाला जीरो होता है, c का वैल्यू मिलता है. अभी c का वैल्यू मिले तो क्या होता है देखो, x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू ये टर्म पूरा का पूरा जीरो होता है, प्लस ये वाला क्या होगा 1 प्लस 1 विल बी 2c. तो अभी इट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/2. अभी ये का वैल्यू चाहिए ना आपको, अभी जीरो सब्स्टिट्यूट करो, इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होता है देखो, ये इक्वेशन में जीरो सब्स्टिट्यूट करो, ax इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 c इंटू 0 प्लस 1, तो दैट विल बी 1. सो 0 इज इक्वल टू ये टर्म तो 0, b इंटू माइनस 1 विल बी माइनस b प्लस c. इट मीन्स व्हाट, c इज इक्वल टू b. तो b का वैल्यू भी कितना आया 1/2. तो b एंड c आर इक्वल. अभी a का वैल्यू चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ x ही करना पड़ेगा. तो इधर देखो ax इंटू ax क्या होगा, ax स्क्वेयर, ax इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस ax, एंड b इंटू x विल बी प्लस bx, b इंटू माइनस b विल बी माइनस b, x स्क्वेयर इंटू c प्लस c. अभी कोएफिशिएंट ऑफ x देखो, इधर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, क्या बोलो कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट इज 1. अभी इधर कोएफिशिएंट ऑफ x देखो क्या क्या है, माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b. तो आपको b का वैल्यू तो पता है, माइनस a उधर ले लो तो ये होगा, तो b माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, a इज इक्वल टू 1/2. आपको आंसर मिलेगा नहीं, तो a का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 1/2 एंड b का वैल्यू भी 1/2. इट मीन्स a b c आर इक्वल. अभी इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, कर सकते क्या, अभी कैसे कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1/2 x प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर प्लस 1 with respect to x plus, and what is c value, c value 1/2 x square plus 1 with respect to x, sorry x minus 1, this is x minus 1 with respect to x. अभी आप इधर ध्यान से इसका वैल्यू है ना उधर ले लो, एक मिनट, 1/2 x plus 1/2. So integration of 1/2 x plus 1/2 divided by x square plus 1 with respect to x plus 1/2 divided by x minus 1, वही वैल्यू था ना उधर, तो वो वैल्यू इधर ले लो. तो अभी इधर देखो ये 1/2 x 1/2 सेपरेट है ना, a प्लस बी डिवाइड बाई दिस, तो सेपरेट करो पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा सेपरेट किया तो क्या होता है देखो 1/2 x एंड हियर इट इज 1/2 x divided by x square plus 1 with respect to x, and you can keep it as a 1/2 outside, x square plus 1 with respect to x, 1/2 outside, 1 divided by x minus 1 with respect to x. Now 1/2 outside, x as it is, x square plus 1 with respect to x plus 1/2, this is nothing but inverse trigonometry function का formula tan inverse x. ये तो 1/2 log of x minus 1 प्लस c. अभी ये कैसे सॉल्व करते हैं पा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू t, देन
2x dx इज इक्वल टू dt, तो इधर 2x नहीं है तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इसका वैल्यू x dx का वैल्यू क्या होगा, x dx का वैल्यू dt बाई 2। तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई t dt बाई 2, 2 विल बी आउटसाइड, 1/2 log of x minus 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x 1/2 प्लस c। अभी इसका आंसर क्या आएगा, log x। इसका आंसर 1/2 log of t plus 1/4, sorry, a 1/2 into 2 will be 4, 1/2 tan inverse x plus 1/2 log of x minus 1 plus c। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। आप इधर t का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/2 इज अ कॉमन, so 1/2 log of what is the t value, x square plus 1 plus tan inverse of x plus 1/2 तो बाहर है, log of x minus 1 plus c। दिस इज योर आंसर। सो इजी है, 1 by 1 स्टेप कर किया तो आपको आंसर आसान से मिलता है। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। Thank you for watching my video.